Hi friends, I'm Anamika Yaduvanshi, and in this series called the Anamika Yaduvanshi Show, I talk to different successful people from different fields and we talk about their life journey. In today's session, I have with me DJ Kashish Rathor. Now, DJing is not only about track mixing, it is also about knowing your crowd, their emotions, and the occasion. And when it comes to knowing other people, their emotions, I think females take the lead. And that's the reason why perhaps female DJs are doing better than their male counterparts. Talking about DJ Kashish Rathor. Now, Kashish is from Siliguri and now she is an established DJ in Delhi. Her journey from Siliguri to Delhi is full of struggles and challenges. Do you want to know her story? Let's go get talking. Welcome, Kashish. How are you doing? I'm good. Thank you so much. How are you? I'm good, Kashish. Thank you so much. I'm really looking forward to this one because एक female DJ से मैं पहली बार बात कर रही Oh, is it? Then it's going to be great. हूँ. Okay, okay. Awesome, awesome. So, Kashish, आप एक DJ हैं हाँ and जी. you have come from Siliguri to Delhi. So, how was your journey to become a DJ? So, Anamika, it was not so very easy. Like, people see that okay, you are DJ. आपको बस कुछ classes लेनी होती है and आपको थोड़ा सा music sense हो then you are a DJ. But no, it is completely opposite to that. Uh, so like journey for me it was really difficult because my family they were not very much comfortable with this the option which I chose to be a DJ. They were not so very comfortable, so it was a very very challenging for me. ओके सो बहुत challenges के बाद आप यहाँ पर बन के आए हैं Perfect. डीजे. Yeah. हाँ जी. बट कैसे हाउ डिड यू डिसाइड कि डीजे बनना है? um so there was that is because होता है ना कि आप चलते जाते हैं जब तक आपको ठोकर नहीं लगती तब तक आपको समझ में नहीं आता कि दुनिया क्या है. तो ऐसे कुछ हादसे हुए जिंदगी में जिनके बाद मुझे लगा कि नहीं जो मैं हूँ एक्चुअली जो मैं हूँ मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ. Like not what others want me to do. I should do what I want for myself. ओके 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 ऑलराइट ओके फाइन. सो कहाँ से डीजेइंग सीखी है आपने? So I learned DJing from Siliguri. एक क्लब हुआ करता है सिलीगुड़ी में हैशटैग. और वहाँ के रेसिडेंट डीजे है डीजे अभी उनसे मैंने डीजेइंग सीखी है. उन्होंने मुझे सिखाया. Great, great, Yeah. awesome. So what sort of music do you play, Kashish? I play Bollywood, I play commercial, I play hip hop. So these are main three genres which I play. Apart from this, of course, deep house and house techno. That is, yeah. Okay, all right. So, being a female DJ, Kashish, Yeah. what sort of challenges do you face in your profession? So challenges. See, I don't face any challenge from the people who are in the same profession. But yes, our society and yes, of course, my own some members in my families and yes, some family members and people of the society. So they make it difficult for me. I'm a girl and I'm into DJing, so it is difficult for me to face the society. किस टाइप के challenges अगर कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहो किस टाइप के challenges आते हैं? So challenges are like see, first of all, the I travel. I keep on traveling. इतना travel करना होता है. And this is like late night job होती है हमारी. And that too we are playing in the clubs. है ना. तो हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के काफी लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि ऐसे काम लड़कियों के लिए नहीं होते. है ना कि लड़कियों को there is a limited time जिसके बाद आपका बाहर जाना
अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये लोगों की नजरों में अच्छा नहीं है, या अगर आप क्लब्स में जा रहे हो तो वो लोगों की नजरों में आप वो उसे सही नहीं मानते, अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं तो वो उनके लिए उनकी नजरों में वो सही नहीं होता। तो ये काफी चैलेंजेस आते हैं। आई पर्सनली आई फेस दिस अ लॉट। Okay, just like you said that your profession is a glamorous profession and it involves lot of travel and night outs, है ना? आपने बोला बहुत सारे लोग हैं फैमिली में या जो थोड़े डिस्टेंट फैमिलीज जो है, नॉट जस्ट डायरेक्ट फैमिली, सो वो लोग शायद, जैसे कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है, शायद अग्री नहीं करते या दे डोंट टेक इट वेरी पॉजिटिवली। तो ऐसा कोई इंसिडेंट कि किस तरीके का रिस्पॉन्स कुछ फैमिली मेंबर्स का रहता है कोई फैमिली ओकेजन में जब आप जाते हो तो? ओके, सो अनामिका, मैं एक टिपिकली राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे राजस्थान में लाइक बेसिकली मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इन आवर फैमिली आई थिंक आई एम द फर्स्ट one who is working, like a first girl who is working in the पूरी पहली लड़की जो काम कर रही है और पहली लड़की जो डीजेइंग वाला काम कर रही है। आपने you broken the records, हाँ? काम कर रही है is a different story, but she is a DJ, is a totally different story. Totally different story, yeah. हमारे घर में जैसे मेरी दो बड़ी दीदी है, I have a younger brother. तो मेरी दोनों बड़ी दीदी की शादी बहुत कम एज में हो गई, like when she was one was I think her early 20s and the second was some in her age of 19, तो उनकी शादी हो गई। इनफैक्ट my all cousins, like मेरी जो cousin sisters है जो मुझसे सारी छोटी है, उनकी भी सबकी शादी हो गई। तो मेरी फैमिली भी मेरे लिए यही चाहती थी कि मैं शादी करूं, I should not work, but before coming into DJing, I was working with some corporate companies. That time my family they were like, okay, because it was 9 to 5 ka job. So every time I am like in front of their eyes. So कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। बट जैसे ही मैं अब डीजेइंग में आई हूँ तो मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं करती, लाइक आई डोंट गेट द सेम लव जो मेरे बाकी कजिन्स को या मेरे भाई बहनों को मिलते हैं। सो आई एम ऑलवेज कंपेयर्ड कि मेरी बहन ऐसी है या मेरी दीदी ऐसी है तो मुझे उनके जैसे रहना चाहिए, या मेरे भैया ऐसे हैं, वो घर के बेटे होके अगर ऐसा कुछ, वो अगर ऐसी लाइफ में नहीं है तो मैं घर की बेटी होके आई शुड नॉट डू एट ऑल। घर वालों की तरफ से टू बी वेरी ऑनेस्ट नामिका, आई डोंट गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। My parents are settled, they are settled and they are happy that okay, जब वो मुझे देखते हैं, जब मैं उन्हें अपनी वीडियोस भेजती हूँ, मैंने जब पापा मम्मी को समझाने की कोशिश करी, इनिशियली पेरेंट्स भी ऑफ कोर्स वो बिल्कुल भी मेरे पेरेंट्स भी नहीं रेडी हुए थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट at the age 21, when I told my dad that dad, I want to work and I want to go out of the house and I want to work. My dad was in a tea garden. The tea garden is nearby Siliguri. It's 100 kilometers from Siliguri. So initially my dad was, no, you can't work क्योंकि हमारे घर में कोई काम नहीं करती है, nobody's working, so you also can't work, you will have to follow the family rules, that tradition, yeah, that tradition. So I was like, no dad, I want to work. तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि if you want to work then you will have to leave this house. And I said okay, I took my bag and मैं फिर बहुत स्ट्रगल किया, इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया। आई वाज इन सिलीगुड़ी, आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, आई वाज वर्किंग देयर एंड उस वक्त इन द स्टार्टिंग जॉब आप फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, और उस वक्त मुझे किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं किया। सो आई वर्कड हार्ड फॉर माय करियर, फॉर माय लाइफ, फॉर माय वर्क। एंड माय डैड ही वाज वेरी अपसेट विद माय डिसीजन। सो वो उन्होंने तो इनिशियली मुझसे 2-3 महीने बात भी नहीं करी बिल्कुल। We were not in the talking terms. फिर धीरे धीरे जब मैंने पापा को थोड़ा समझाने की कोशिश करी तो मेरी जो बाकी फैमिली मेंबर्स है मेरे, like my grandparents and some other relatives, so they were like पापा मम्मी को always बोलना कि आपने बहुत ज्यादा रखा है, हाथ से निकल जाएगी, बेटी है, इसकी भी शादी करानी पड़ेगी, now she's 21.
Yeah, I know. बाकी की दोनों बहनों की शादी करा दी, इसकी भी शादी कराओ। तो वहां से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, लाइक फाइटिंग विद द सोसाइटी, फाइटिंग विद माय पेरेंट्स, फाइटिंग विद माय फैमिली। और अब आई थिंक मैं यहाँ तक हूँ, तो पेरेंट्स को तो मैंने समझा लिया है, बट स्टिल आई कांट मेक अंडरस्टैंड, लाइक रेस्ट ऑफ द फैमिली इज दैट डूड, लाइक प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ। सो इट इज स्टिल Hmm. Yeah, yeah, I know. अगर 21 साल में आपकी शादी कराने वाले थे, अभी आप 28 years के हो, and डिफिकल्ट। आप ज्यादा, I think when you started at the age of 21 that time, तो you just started a simple job, I believe, है ना? Very simple. तो I अगर was I, तब I was earning just 5,000 bucks for a month. I think that was my salary. Just I still remember that I used to eat only rice and one boiled egg in the lunch because उतना ही मैं afford कर पा रही थी at that time because nobody was financially, किसी ने मुझे support किया नहीं. I was doing everything on my own. So नो आई थिंक अगर 21 साल की उम्र में आपकी फैमिली जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वो कहते थे कि अगर इसकी शादी कराने का टाइम हो गया, लेट हो रहा है, अब शादी कराना चाहिए, तो अब आप 28 के हो, इतने सक्सेसफुल हो, इतने ट्रैवल पार्टी जहाँ पे लोग पीपल आर ड्रिंकिंग एंड सब डांस करें, एक अलग किस्म का एटमोस्फियर है। आप अपना काम करो, अपने कंसोल पे हो, आपका सारा ध्यान अपने काम पर है, बट द एटमोस्फियर एक अलग किस्म का एटमोस्फियर है। तो अब उन लोगों का क्या आपको लेके रवैया रहता है व्हेन यू गो एंड विजिट देम ड्यूरिंग सम वेडिंग्स और फेस्टिवल्स? तो आपको कैसे लगता है उनके बीच में, टू इन क्राउड के बीच में, जो लोग जानते हैं कि आप ऐसे बीच में काम करते हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स जानते हैं, उनके बीच में जब आप जाते हो आपको कैसा लगता है? उनके बीच में ऐसा है कि जैसे अभी जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं लाइक सिलीगुड़ी, कोलकाता, तो उनमें से काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफी प्राउड फील करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंस्पायर्ड है विद माय विद माय जर्नी। तो काफी है जो आई आई ऑलवेज गेट जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो वही लोग हैं जो मुझे आज भी इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि हम आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। Family response is okay. I'll not say, but they are still like, आज ही मेरी मासी का फोन है, and she was telling my mom that tell her not to wear too short clothes, like यहाँ पे अपने फोटो दिखाते हैं। Okay. I was like, mom let it be. तो अभी भी फैमिली को मैं अभी भी नहीं समझा पा रही, बट हाँ बाकी के लोग they are happy, they are happy. Okay. बट कितना इम्पोर्टेंट फील होता होगा कि आपके बारे में सब सोचते रहते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा आई फील लाइक कि आई एम मेरे बारे में एटलीस्ट इतना बोल रहे हैं सारे हैं। आई फील वेरी हैप्पी हूँ सबके बीच अभी भी जाती हूँ, जो लोग मेरे लिए अच्छा फील करते हैं, जो मेरे लिए खुश हैं, उनके बीच में बहुत बार जाना होता है। सो आई आई रियली आई फील गुड। Oh, that's nice. Yeah. Kashish, you're very young. You're 28 and जो ये जर्नी आपकी रही है सिलीगुड़ी से दिल्ली तक, आई एम श्योर इसमें कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, कुछ लव रिलेशनशिप्स रहे होंगे। सो उन रिलेशनशिप्स का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? किसी एक रिलेशनशिप के बारे में अगर आप बात करना चाहो। किसी एक, मेरा एक ही रहा था विद एक ही था whom I loved, like anything I have given my everything to him. जब मुझे पता भी नहीं होता था कि what is love, because मेरे लिए ऐसा था अनामिका कि अपनी फैमिली से मैं लड़ते लड़ते मैं जॉब कर रही हूँ, राइट। मुझे अपनी फैमिली से मुझे अब खुद को प्रूव करने में मैं लगी हुई थी कि पापा मैं एक दिन आपको खुद प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, अगर मैंने जॉब करने का डिसीजन लिया है तो ये गलत नहीं है। उसी बीच मैं जब उस लड़के से मिली, आई डोंट नो ही वाज क्या था ऐसा कि मैं उससे इतनी कनेक्टेड हो गई, एंड I loved him like crazy, like anything. And he was also a DJ.
उसके साथ मैं रहते रहते यू नो आफ्टर सम टाइम मैंने काफी हद तक मैंने वहां से भी डीजेइंग सीखी। हम्म, एंड जब मैं उसके वहां पे मैं डीजेइंग सीखती थी, मैं जब उससे मिलती थी, मैं जब वहां जाती थी, तो मैं कहीं ना कहीं मैं इस चीज से मिलने लगी थी कि मैं एक जॉब कर रही हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में, डांसिंग में है, जो बहुत पहले कहीं खो गया था। वो हम्म, वहां से धीरे धीरे ऊपर आने लगा। हम्म, मैं वहां से मैंने हल्की हल्की डीजेइंग सीखती रहती थी मैं। बट आफ्टर सम टाइम वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, एंड हमारा ब्रेकअप हो गया। एंड आफ्टर द ब्रेकअप आई वाज इन काइंड ऑफ अ ट्रॉमा। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में भी बता रखा था अबाउट हिम कि आई एम हम्म, डेटिंग अ गाय एंड ही इज समबडी, एंड that person told me that we will get married and all that जो रिलेशनशिप में होता है। बट सो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला था, मैंने कहा यार वी वांट टू सेटल डाउन विथ each अदर, एंड हम्म, बट जब वो वर्क नहीं हुआ तो फैमिली का भी जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। बंद हो गया क्या? जो हाँ, अब मेरी जो फैमिली है उन्होंने कहा कि लो, हमने हमने तो आपको पहले ही कहा था कि बेटी को घर से बाहर मत जाने दो, अब देखो ये बाहर जा रही है। मैंने कहा था ना वाला जो अब सीन होता देखो, है। हमने कहा था मत इतना बेटी को सर चढ़ाओ, अब देख लो क्या हो राइट। रहा। उसके बाद आई वाज नामिका, आई वाज लाइक कंप्लीटली आई वाज ब्रोकन। Shattered. I was broken because the family was not there, friends were not there, and he was not there. और उस वक्त क्या होता है ना, सिलीगुड़ी इज अ स्मॉल टाउन। Mhm, और mhm, स्मॉल टाउन में क्या, हम अगर बड़ी सिटीज जहाँ पे भी देखें, आपके अगर आप रिलेशनशिप में होते हो और अगर वो सोसाइटी को पता होता है, उसके बाद अगर आपका ब्रेकअप होता है, तो वही सोसाइटी ना आपको बहुत अब्यूज भी करने लग जाती है। yeah, हम्म। yeah, तो ये मेरे साथ काफी हुआ कि आफ्टर द ब्रेकअप जो मेरे कुछ लोग आसपास के थे, जो सोसाइटी थी, उन लोगों ने काफी अब्यूज करना शुरू कर दिया था कि हाँ देखो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसको छोड़ दिया, लड़के ने इसे छोड़ दिया, yeah, हमें तो पहले ही था ये वो। इट वाज इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। वहां से फिर मैं गुड़गांव आई। गुड़गांव आके मैंने यहाँ पे आई यू नो मैंने, अभी भी मुझे याद है कि मैंने कोशिश करी थी इन द ईयर 2018। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कहीं पे जॉब करूं, मैंने काफी जगह इंटरव्यूज दिए, बट द सिचुएशन वाज, एक होता है आप कभी कभी आपका टाइम बहुत गलत चल रहा होता है। उस वक्त शायद वो टाइम मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। मैं जिस कंपनीज में जाती थी, मुझे कहीं के स्टाफ अच्छे नहीं मिल रहे थे, कहीं पे मुझे मैनेजर अच्छे नहीं मिल रहे थे, कहीं पे कॉम्प्रोमाइजिंग वाला सीन आ रहा था कि हम आपको ये सैलरी तभी देंगे जब आप इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे, जब आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। mhm, तो ये नहीं हुआ। मैंने 2 महीने तक मैंने काफी ट्राई किया, एंड ऑल दैट टाइम मेरी जितनी सेविंग्स थी, मैंने अपनी सारी सेविंग्स ऑलमोस्ट स्पेंड कर दी, एंड आई वाज इन अ धीरे धीरे मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा रही थी। फिर ऑल ऑफ सडन आई डिसाइडेड कि आई शुड व्हाई लाइक कि मैं क्यों इतनी कमजोर पड़ रही हूँ। I think I should do something when I have that talent। जब अभी तक मैं जब मैंने ना इंस्टाग्राम और फेसबुक में जब देख रही थी, तो मैं उस लड़के को देख रही थी कि he was dating somebody else and he mhm, was posting the pictures जिसमें वो बहुत खुश है, they are going for a dinner और for dates। तो मैंने डिसाइड किया कि जब वो इंसान इतना खुश है, then why I am killing myself। mhm, वहां से वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देयर आई डिसाइडेड, एंड मैंने अपने बैग पैक किए, मैं सिलीगुड़ी आई, और मैंने सिलीगुड़ी आके फिर मैंने अपनी डीजेइंग फिर से स्टार्ट कर दी वहां पे आके। देन okay, आई थॉट कि अब मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं mhm, करना चाहती हूँ। नॉट कि क्या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं या क्या मेरी फैमिली चाहती है, क्या ये सोसाइटी या क्या मेरे फ्रेंड्स, कौन चाहता है, आई डोंट केयर, आई विल डू व्हाट आई mhm, वांट टू डू। वहां से फिर जो मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने घर पे भी बोल दिया, मैंने सबको कहा, मैंने कहा अगर आप लोगों को किसी को सपोर्ट करना है वेल एंड गुड, नहीं करना है मत करो, mhm, बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, बट
अब मैंने जो डिसाइड किया है मैं वही करूंगी. So from there, I'm here. That's really very courageous and brave of you, because you were just, coming out of depression and a breakup, and you were so shattered and you made this decision. Wow, this shows how strong, I you are. I think कि अगर शायद वो रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं आता अनामिका, तो आज भी मैं वही रहती जहां मैं थी. मैं खुद को आज भी नहीं पहचान पाती. So I'm really thankful to him कि I'm here today. That's a great feeling, Kashish, when you're thankful for, something negative which has happened in your life, and you're taking it in a positive way and finding the positive in it and moving ahead. That's a beautiful quality, I must say. Because of him, I think I met myself because पहले अनामिका में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करती थी, जैसे आई वॉज ट्राइंग फॉर दुबई उस रिलेशनशिप के बीच में, and that was kind of my dream job, and I got selected and I was so happy. I told him कि look, I want to go and this is the thing. So he said yeah please, he just उसने मेरा हाथ पकड़ा and he was like please don't go because I'll be alone. That was just वो जब प्यार जब नया होता है उस वक्त की बात है वो. They was like I'll be slow, please don't go, you to be here. I was like okay fine, done, नहीं जाऊंगी मैं. Wow. मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं. तो yes, today if I'm strong and अगर मैं खुद से रूबरू हुई हूँ तो because of that person. This is beautiful, incredible. Thank you so much for sharing this with me. And Kashish, I know that this is a big incident, big turning point of your life. Besides this incident, what has been, your biggest challenge and the lesson that you've learned from that? So my the challenge was second like मेरी खुद की फैमिली से अनामिका मेरे काफी चैलेंजेस रहे हैं कि जैसे मान लो अभी मैं हूँ और मेरे साथ ही मेरी अपनी ही अगर बहन है, मेरी बहनें हैं, हम सारे एक ही घर में बैठे हैं, तो आई थिंक मेरे बाकी घर वाले उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, एंड आई एम द लेफ्ट आउट पर्सन. Like there's nobody who is talking to me. Like I have no one with whom I can share in my family, right? कि अगर मान लो मैं किसी प्रॉब्लम में भी हूँ या मैं किसी सिचुएशन में भी हूँ, तो आई थिंक मेरी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं है. और हमेशा मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स नहीं बट जो मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों ने हमेशा मेरे मम्मी पापा को भी, अब लाइक मेरे मम्मी पापा भी अब एक टाइम पे ऐसा हो गया है कि अब वो भी इतना परेशान हो चुके हैं कि वो कभी बात सुनते हैं या कभी नहीं सुनते, या कभी वो ज्यादा कुछ सुन लेते हो तो मुझ पे ही चिल्ला देते हैं. आई विल टेल यू व्हाट अनामिका, क्या होता है, जैसे नाउ अ डेज योर फेसबुक एंड इंस्टा आर द टू बिग थिंग जो कि सोशल मीडिया जो लोग यूज कर रहे हैं. फेसबुक पे हर कोई है आज के टाइम पे. तो मान लो मेरा कोई इवेंट है या मैंने अपने किसी फ्रेंड के साथ फोटोज खिंचाई है, सो आई बिलोंग्स टू स्मॉल विलेज, है ना. आई बिलोंग्स टू लाइक आई वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज. वहां के लोगों को कुछ भी समझाना इज वेरी डिफिकल्ट. आप नहीं समझा सकते. yes. क्योंकि उन्होंने ये, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी है ना. तो आपके लिए उनको समझाना बहुत मुश्किल है. अभी मान लो ये मेरे साथ अभी भी होता है, आज भी मेरे साथ होता है कि मेरी कोई भी किसी लड़के के साथ, कोई मेरा फ्रेंड है जो मेल फ्रेंड है, उसके साथ मेरी फोटो है, अगर मैंने वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डाली है, तो आई तो डोंट इवन नो कि वो है कौन. मैं तो दूर दूर तक कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी मैंने. वो मेरे पापा को फेसबुक पे मैसेज, देखो आपकी बेटी की फोटो हमने इसके साथ देखी है, ये लड़का कौन है, आपने क्या इसकी एंगेजमेंट कर दी, सगाई कर दी, वो सगाई नहीं करी, ऐसे ही किसी लड़के के साथ फोटो खिंचा रही है. तो ये चीजें ना अब भी बहुत होती है, और उस चीज को लेके आज भी जैसे तमाशा हो जाता है घर पे कि अगर मैंने स्कर्ट पहनी, अगर मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, तो
आप देखो आपकी बेटी, हमारे में तो ऐसा कभी कोई नहीं होता, आपने अपनी बेटी को ज्यादा ही सर चढ़ा लिया, देखो आपकी बेटी कैसे कपड़े पहनती है। तो आज भी मेरी मम्मी का फोन है, मम्मी कह रही है यार तू ना अपने शोज में जाती है लेकिन कपड़े ऐसे मत पहना कर। मैंने कहा मम्मी क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, आई व्हेन आई लव टू वेयर दिस आई विल वेयर दिस ना, लेट देम से। मैंने कहा मैं तो कभी किसी को नहीं बोलती कि आप क्यों ऐसे पहन रहे हो, या आप इसमें बहुत भद्दे लग रहे हो, या आंटी आपने ये साड़ी पहनी है, आपकी टमी बहुत ज्यादा दिख रही है, आपको साड़ी नहीं पहननी चाहिए, आपको लंबा कुर्ता पहनना चाहिए। मैंने जब कभी किसी को नहीं पहन बोला है तो मुझे कोई क्यों बोल रहा है। ये तो लाइक मैं हर दिन मैं ऑलमोस्ट मैं फेस करती हूँ, बट फैमिली की तरफ से अनामिका भी मुझे, अब मैं इग्नोर एक टाइम पे जैसे, अब मुझे मेरे घर गए हुए आई थिंक मुझे 3 साल हो चुके हैं राजस्थान। मेरी बहुत मन करता है कि घर पे जाना, अपने सारे कजिन्स के साथ बैठना, मिलना, उनसे बातें करना जैसे हम पहले किया करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अब जाती हूँ तो मैं बहुत वहां पे लेफ्ट आउट फील करती हूँ। मुझे वो प्यार नहीं मिलता जो उनको मिलता है। तो ये तकलीफ कहीं ना कहीं अभी भी रहती है दिल में कि आई विश कि मेरी फैमिली या वहां के जो लोग हैं वो लोग समझे कि अगर आपका एक आप लड़की हो और अगर आप डीजे हो, नाइट लाइफ में हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इस तकलीफ से, इस चैलेंज से लेसन क्या सीखा है कशिश? मैंने मैंने यही सीखा है कि आप वही करो जो आप करना चाहते हो, आप वही करो जो आपको पसंद है। एटलीस्ट मैं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अनामिका कि मैं अगर मैंने इतनी लड़ाई करी है इस सोसाइटी से, अपनी पूरी फैमिली से, मैं सबसे आज लड़के अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, मैंने कहीं ना कहीं मैंने कुछ अचीव किया है। मेरे जो सपने थे मैंने उन सपनों को पूरा किया है। मैं खुद को जहां देखना चाहती थी आज मैं खुद को वहीं देख रही हूँ, और शायद धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएंगे, और ना भी समझे तो भी मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो आई थिंक आई एम हैप्पी एंड या I love this part when you said मैं अपने लिए कर रही हूँ और मैं खुश हूँ. This is खुश beautiful. This is beautiful. This is beautiful about you. मैं जब अनामिका ये होता ना कि जब आप खुश रहते हो, एक चीज है जो मैंने अब तक जो सीखी है कि जब आप खुश रखते हो ना तभी आप सामने वाले को खुश रख पाओगे। खुश रख सकते हैं. You can't give what you don't have. अगर आप खुश हो तभी आप खुशी दूसरों को दे सकते हो. आज Beautiful. Yes. तो मैं वो खुशी, मैं खुश हूँ कि भले ही वहां पे 10 लोग थे, 10 लोगों में से 8 लोगों ने मुझे नहीं समझा, लेकिन 2 लोगों ने मुझे समझा है और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उन 2 लोग जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, आज मेरे भाई बहन है जो मेरे सिबलिंग्स हैं, और 1-2 कजिन्स है। भले ही मेरी फैमिली में मान लो अगर 30 लोग हैं, 30 लोगों में से मुझे 20 लोगों ने नहीं समझा हो, लेकिन 10 लोगों ने मुझे समझा है और मुझे प्योरली सपोर्ट करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि ना जब लोग किसी और को मेरा नाम देके इंस्पायर करते हैं कि लुक दैट गर्ल जो Beautiful. Yeah. जिसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया बट आज वो यहाँ पे है, शी इज डूइंग समथिंग फॉर हरसेल्फ। सो या Yeah, that's incredible. बिना सपोर्ट के भी अगर लड़की वहां पहुंच सकती है तो बाकी लड़कियां थोड़े सपोर्ट के साथ बहुत कुछ कर सकती हैं, और सपोर्ट नहीं भी मिला तो कशिश से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. नहीं अनामिका, मुझे ये मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, मैं खुश भी होती हूँ बहुत इनको देख के। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक कोलकाता का एक न्यूज़पेपर है, वहां पे मेरा आर्टिकल भी निकला था। वहां पे भी मेरी लाइफ जर्नी के बारे में पूछा गया कि आप क्या हो। तो ना ये जब लोग इस तरीके से पूछते हैं ना, लाइक कि इंस्पायर होते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ आपने अपनी लाइफ किया है। Beautiful. Yes. Yeah. Yes, beautiful. So Kashish, now what's your goal in your life? So now अब अगर मैं यहाँ आ गई हूँ अनामिका, तो यहाँ से पीछे मुड़ के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। एंड आई नो सी द लाइफ इज नॉट वेरी स्मूथ, एंड सी होता क्या है कि आप आपको किसी मंजिल तक पहुंचना होता है। आप रास्ते पे चल रहे हो, आप चलोगे, वहां आपके पैरों में कंकड़ चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, आपको चोट लगेगी, आप गिरोगे,
आप डिसाइड करते हो कि आपको उस चोट को लेके, उस दर्द को लेके वहीं बैठे रहना है, या उसको खुद को मरहम पट्टी करके आपको फिर आगे चलना है ना? तो राइट। मुझे आई वांट टू सी माई सेल्फ कि मैं इंडिया के टॉप डीजेज में आऊं, टॉप वाह, लिस्ट में आऊं, जो कि आई बिलीव मैं जो मेहनत कर रही हूँ खुद के लिए, मैं बिल्कुल करूंगी अपने लिए. सो आई माय वांट टू. बेस्ट विशेस टू यू, इंशाल्लाह जल्दी से आप पहुंचो टॉप पर। थैंक यू अनामिका, थैंक यू. ओके, सो अब टॉप पर जाना है तो हमें अपनी कुछ कुछ गलतियों पर तो काम करना पड़ेगा, बिकॉज हमें कहीं ना कुछ फ्लॉज होते हैं. हाँ सो बिल्कुल. व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव ऑन, कशिश? Okay, so I am I'm very moody. अच्छा, ओके. I'm very moody and I have ये क्या होता है ना कि आप I'm happy also कि जब आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, या आपकी जब आप आपकी एक रेगुलर लाइफस्टाइल नहीं होती है, तो आपका थोड़ा सा एक स्ट्रेस लेवल रहता है ना? और अभी जैसे बिल्कुल हर एक आप अगर कुछ भी प्रोफेशन उठा के देख लो, सब जगह बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं. राइट. हमारे यहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस हैं, तो उन चीजों का स्ट्रेस रहता है. इन सब चीजों की वजह से ना मुझे बहुत आई हैव द एंगर इशू, है ना? मैं बहुत short हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ना ये गुस्सा क्लब में भी निकल जाता है बहुत बार. तो मैं बहुत बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ. तो मुझे मेरे इस गुस्से पे और मुझे मेरे मूड स्विंग्स पे बहुत काम करना है, जिसके लिए मैं योगा करना शुरू करने वाली हूँ. I मैं. think yes, like you said, कि mood swings, गुस्सा या ये, these are all emotions. हम्म. And when we are not able to control our emotions, we are powerless. हमारे पास कोई पावर ही नहीं होती है, because we get carried away by emotions. हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, and we regret later कि काश थोड़ा सा कंट्रोल किया होता तो हाँ, चीजें शायद थोड़ी बेटर होती. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस. दिस इज कंट्रोल. ब्यूटिफुल. यस. या दिस इज वंडरफुल. सो कशिश, अगर कोई डीजे बनना चाहे, इफ एनीबडी वांट्स टू बी अ डीजे, व्हाट स्टेप्स शुड वन फॉलो? Should have the good music taste, like very good music taste, and people should know a person, a guy or a girl, whoever, जिन्होंने अगर पहला स्टेप लेना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो यही है कि आप अपना म्यूजिक आप बिल्कुल रेडी रखें. म्यूजिक रेडी एज इन हर एक सिटी का अलग अलग म्यूजिक टेस्ट होता है. मैं अगर लखनऊ में प्ले कर रही हूँ, वहां पे उन लोगों का, उनको म्यूजिक ही चाहिए, उनको गाने ही चाहिए, लेकिन उनका गानों का टेस्ट अलग है. मैं हैदराबाद में प्ले कर रही हूँ, हैदराबाद का क्राउड है, उनके गानों का टेस्ट अलग है. अब सिर्फ हैदराबाद में ही ऐसे बहुत सारी अलग अलग लोकेशन है, जहाँ पे अगर इस लोकेशन के लोगों को ऐसे गाने पसंद है, इस लोकेशन के लोगों को ऐसे गाने पसंद है. अगर आपको ये बनना है, तो आप पहले लोगों का माइंड रीड करना सीखो. आपको इंसान देख के ये पहचानना पड़ेगा कि इसको क्या म्यूजिक पसंद आ सकता है. Wow, wow, दिस इज this is इम्पोर्टेंट. this आई is थिंक beautiful. बिकॉज म्यूजिक प्ले करना और लाइक आप प्लेइंग सीख जाओगे, आप टेक्निक सीख जाओगे, आप प्लेइंग सीख जाओगे, आप गाने भी प्ले कर दोगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन कैसे, मतलब कहाँ पे क्या गाने लोगों को पसंद आ सकता है. Incredible. Yes, yes. Because knowing others' psyche is very important. कौन सा, because it's music, everybody is there for fun to enjoy. कौन सा म्यूजिक वो एंजॉय करेंगे और आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी उस क्राउड में, उस इवेंट में. You really need to tap on that energy. That's very important. I'll give a small example. आप मान लीजिए बॉलीवुड, बॉलीवुड हर जगह चलता है, सबको बॉलीवुड पसंद है. मान लीजिए आपको भी बॉलीवुड पसंद है, मुझे भी बॉलीवुड पसंद है, थर्ड पर्सन है उसको भी बॉलीवुड पसंद है. अब मैं कहीं किसी ऐसी पार्टी में जा रही हूँ जहाँ पे यंगस्टर्स से ज्यादा हमारे सीनियर सिटीजन है ना, एवर 40. उनके लिए अगर मैं बहुत ही नए, जैसे अगर उनके लिए अगर मैंने बिजली बिजली भी प्ले कर दिया, तो शायद वो उसको एंजॉय ना करें. मुझे उनको समझना होगा कि दे विल लव रेट्रो, दे ऑल विल. तो उनके लिए मुझे रेट्रो के सिलेक्शंस रखने होंगे.
दे विल लव रेट्रो, है ना। उनके लिए अगर मैं आज के गाने बजाऊंगी तो वो शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद ना आए, क्योंकि वो ये गाने अब सुनने लगे हैं, उन्होंने रेट्रो अपने टाइम से सुनते सुनते वो अब तक सुनते आ रहे हैं। Right. This is beautiful, and this was really indeed a great session. And बहुत अच्छा लगा. This just brings to my last question for tonight, बिल्कुल। and that's like your message to all the girls out there. ओके, मैं सबको मैं लड़कियों को भी, और बहुत सारे लड़के भी होते हैं, मैं सब लड़कों को भी, बहुत सारे अनामिका लड़के ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली उनके करियर को लेके उन्हें सपोर्ट नहीं करती। जैसे अगर कोई लड़का है जो अगर मॉडलिंग में जाना चाहता हो, या अगर कोई लड़का है जो एक्टिंग में जाना चाहता हो, तो फैमिली का ये कहेगा कि नहीं, आपको शादी कल को बच्चे होंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आप वही करो तो आप सेटल्ड हो, अदरवाइज आप सेटल्ड नहीं हो। तो लड़कों को भी मैं इन चीजों में देखती हूँ काफी प्रॉब्लम आती है, और लड़कियों का जब तक आप खुश हो, जब तक आप सेटिस्फाइड हो, सब अच्छा है। आप खुश रहोगे तो ही आप सामने वाले इंसान का कभी भी अपनी इच्छाओं को इतना भी मत मार दो कि आप ही मर जाओ, राइट। या आप कभी भी अपनी आप अपनी इच्छाओं को इस कदर मत खत्म कर दो कि बिल्कुल आप ही वहां से खत्म हो जाओ। That's a great line which you just said. कभी भी अपनी इच्छाओं को इतना मत मार दो कि आप ही मर जाओ. That's incredible. And fantastic. I'll one thing जो मैं सबको कहती हूँ और मैं आज भी कहना चाहती हूँ कि आप भले ही आप शायद किसी भी मजबूरी में आप वो नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, मे बी अ गर्ल हु इज अ डांसर और सिंगर और एनीथिंग, हो सकता है कोई लड़का है या लड़की जिसको लिखने का शौक, कुकिंग का शौक, कुछ भी हो, आप अपने बिजी शेड्यूल से, है ना, आप अपने बिजी शेड्यूल से आप अपने लिए हो सके तो आधे घंटे का ही वो टाइम निकाले, चाहे हफ्ते में आप 3 बार इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम निकालें, लेकिन आप वो करें जो आपको पसंद है करना। आप वो जरूर करें जो आप अपनी इच्छाओं को खत्म ना करें। अगर आपको कुकिंग करनी पसंद है तो आप हफ्ते में चाहे 2 दिन निकालें, लेकिन आप कुछ बना के कुछ खाएं, आप मतलब आप बनाएं, लोगों को खिलाएं और आप खाएं। अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम स्पेंड करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या दुनिया को खुश करते करते खुद की खुशी ना मारे, खुद की खुशी मत खत्म करो। Yeah, that's wonderful. That's really, really wonderful. Thank you so much, Kashish, for this insightful session. और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। Actually, आप यंग हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा courageous हैं, and बहुत strong हैं. My best wishes to you for everything that you do in your future. थैंक यू सो मच अनामिका, थैंक यू सो मच। इट वाज हमें भी अच्छा लगता है कभी कभार बैठ के अपनी दिल की बातें करना, कि हम किसी को बता पाए कि हमने क्या क्या चीजों से सेक्रीफाइस किया या किन किन चीजों को फेस किया है। सो आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।